A very good morning and Jai Hind student. How are you? I hope you are fine at your home. So you have to stay your home. Today we will discuss your new and last topic of this chapter. Your chapter name is Basic Concept of Macroeconomics, Circular and Circular Flow of Income. So today is your last topic, Circular Flow of Income. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड कराऊंगा विच आर यू पीपल रीड फ्रॉम क्लास 9th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन याद आया होगा थोड़ा बहुत द स्टोरी विलेज ऑफ पालमपुर. सो व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? नो, I hope you all aware for this concept because this is not new concept. When we produce anything, pin to plane, pin से लेके plane तक, marker, duster, pen, fan, bike, car, rail, कुछ भी. When we produce anything, we requirements various materials, and all those things which used in production process known as factor of production. Various things used. But for convenience and as economics students, all things we related to for factor of production, all things which are related, which are used in production process, we convert into how many factor of production? Four factor of production. First is land. Second is capital. Land, labor, capital, and entrepreneur. Entrepreneur. So these four factor of production, or you can say input. Factor, input. And by the help of these four factor of production, we produce anything. Getting? And after the produce anything, goods and services made, then after goods and services sold in the market, और जो भी revenue मिलता है, revenue distribute on the owner of factor of production. That is factor income. This is factor of production. And listen again. When they people and they things produce anything after the production, these things sell in the market and will get revenue. And revenue distribute in the factor of production. Among the factor of production. तो जो distribute होगा वो क्या होगा? Revenue. और किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा उसको क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम. किस फॉर्म में? लैंड को क्या मिलेगा? रेंट. लेबर को वेजेस एंड सैलरी विच डिपेंड ऑफ लेबर. सच टाइप ऑफ लेबर गेट वेजेस एंड सच टाइप ऑफ लेबर वेजेस. कैपिटल को जिसकी मशीनरी कैपिटल लगी हुई है या जहां से पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, इंटरेस्ट. एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट. गेटिंग? तो दिस कंसेप्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. हाउ मेनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. और यू कैन से फैक्टर इनपुट्स. और आउटपुट ये प्रोड्यूस करेंगे. फिर आउटपुट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम क्या होगा? रेंट, वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. इफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, देन you easily understand circular flow of income. Without the understanding of factor of production and factor income, you can't understand this. Getting everyone? So factor of income included in national income. There are two concepts, factor income. One more thing, beta. There are some difference between factor income and transfer income. This is factor income, and one thing होती है transfer income.
एक बेसिक सा डिफरेंस होता है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में। फैक्टर इनकम किस फॉर्म में होती है? रेंट, वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। बट ट्रांसफर इनकम इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम नॉर्मली मेहनत से मिलती है। अपनी लैंड दोगे आप, रेंट मिलेगा। लेबर मेहनत करेगी, वेजेस एंड सैलरी मिलेगी। कैपिटल, अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे, इंटरेस्ट मिलेगा। एंटरप्रेन्योर रिस्क लेगा, प्रॉफिट मिलेगा। बट ट्रांसफर इनकम क्या होता है? विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ट्रांसफर इनकम रिलेटेड टू suppose that gift, donation, etc. So transfer income is not included in the national income because it is it is earned by the not given rendering service। आप कोई सर्विस नहीं दे रहे हो, एज इट इज ऐसी आपको मिल रहा है, तो इसलिए इसको नेशनल इनकम में हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो आई होप फैक्टर इनकम आप लोग और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझ गए होंगे। एंड आफ्टर द डिस्कस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वी आर एबल टू डिस्कस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? देखो, आप लोगों ने एक और कंसेप्ट रीड की थी इनिशियल स्टेज में, सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। देयर आर 4 सेक्टर इन द इकोनॉमी: हाउस होल्ड सेक्टर, फार्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगेन लिसन: हाउस होल्ड सेक्टर, फार्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट इन 12th क्लास सिलेबस, current syllabus, we will discuss only 2 sector model, circular flow of income in 2 sector model। यानी हम एज्यूम करेंगे हम एक ऐसी इकोनॉमी का डिस्कस कर रहे हैं जिसमें केवल 2 सेक्टर, मैं जंक्शन में लिखाऊंगा आपको व्हाट आर 2 सेक्टर ओनली: हाउस होल्ड सेक्टर एंड फार्म सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड फार्म सेक्टर प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल एंटायर आउटपुट ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर। इन दिस इकोनॉमी, किस इकोनॉमी जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं, देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, एंड देयर इज नो ट्रेड बिटवीन अदर कंट्रीज लाइक एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो 4 सेक्टर इकोनॉमी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, वी डिस्कस ओनली 2 सेक्टर इकोनॉमी: हाउस होल्ड सेक्टर एंड फार्म सेक्टर। तो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? सो हियर डिफाइन, इट इज द फ्लो ऑफ, सर्कुलर फ्लो इनकम की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, इट इज द फ्लो ऑफ मनी, मनी का फ्लो हो या इनकम का, मनी इनकम, और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड services across different sector of an economy, different sectors of an economy in a circular form। So this is a definition of circular flow of income। It is the flow of money income। money income का flow है ये। किस सेक्टर में कहां पे फ्लो होगा? 2 सेक्टर। I have already said we assume 2 sector in the economy। Which 2 sector? Household sector and farm sector। Household sector, household sector and farm sector। समझिए डेफिनेशन को। इट इज द फ्लो ऑफ मनी इनकम और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ये किसका फ्लो करेंगे? इधर से इधर गुड्स एंड सर्विसेज। ये इसका क्या देंगे? पेमेंट देंगे ना गुड्स एंड सर्विसेज का। हाउस होल्ड परचेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फार्म सेक्टर से, ये तो यहां से यहां पे क्या जा रहा है? फार्म सेक्टर सेंड कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, और ये सेंड कर रहे हैं यहां पर मनी। तो क्या हुआ यहां पर? एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में फ्लो हो रहा है। गेटिंग? I hope are you getting my point? It is the flow of money income
or the flow of goods and services across different sector of an economy in a circular form. Circular form में क्या, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, in a circular form. So this is a circular flow of income. I hope getting this point. Circular flow of income की definition. Next है principle of circular flow of income. Principles of circular flow of income. Very important concept है. There are two principle जिसके बेस पर circular flow of income work करता है. Principles of circular flow of income. First क्या है? The amount of spending of consumer. The amount of spending of consumer, जो अमाउंट कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है, जो अमाउंट कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है, द अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग बाय द कंज्यूमर, द अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग बाय द कंज्यूमर्स बिकम द इनकम. कंज्यूमर्स ने जो भी स्पेंड किया है, बिकम द इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर. देखिए इस प्रिंसिपल को समझिए आप भी. क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर्स. कंज्यूमर मार्केट में जाकर, हम पूरी एंटायर कंट्री की बात कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स आप स्टडी कर रहे हो, भूलना मत इसको कभी भी. कंज्यूमर ने क्या किया? मार्केट में जाके स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया. जैसे उसने स्पेंडिंग किया, द अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग, मैं एक मार्केट परचेज करके लाया, क्या हो जाएगा? स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर, मेरा खर्च हुआ, बिकम द इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर. किसकी इनकम बन जाएगा? जिसने मार्केट को बनाया. अल्टीमेटली उसके पास पैसा पहुंच जाएगा. आई होप गेटिंग. द अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर्स बिकम द इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर. नेक्स्ट वन बी. सेकेंड है goods and services flow. Goods and services, I want to see, goods and services flow in one direction. किस डायरेक्शन में जाएगा? फ्रॉम किससे? सेलर टू बायर, और यू कैन से producer to consumer. Goods and services flow in one direction from seller to buyer. While money का क्या होगा? Money, while money payment for these goods and services move in the opposite direction. That is from buyer to the seller. There are two basic principles of circular flow of income. You can say A में क्या है? The amount of spending by consumers. कंज्यूमर ने जितना भी अमाउंट स्पेंड किया है, बिकम द इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर. वो सारा प्रोड्यूसर की इनकम बन जाएगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इन अ सेकंड पॉइंट बी, गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो इन वन डायरेक्शन. जितना भी मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, वो फ्लो किस डायरेक्शन में होगा? वन डायरेक्शन फ्रॉम सेलर टू बायर. यानी गुड्स एंड सर्विसेज किसने बनाया? प्रोड्यूसर ने. कहां पे जाएगा? सेलर टू बायर. अब सेलर से बायर के पास क्या पहुंच गया? अपना गुड्स एंड सर्विसेज. वाइल मनी पेमेंट, मनी का क्या होगा? मनी किसको करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा. मैंने मार्केट परचेज किया शॉपकीपर से, शॉपकीपर प्रोड्यूसर मानो आप यहाँ पे, और मैं क्या हुआ? हाउस होल्ड. तो गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो इन वन डायरेक्शन. कहां से कहां पे आया? सेलर से मेरे पास, सेलर से यानी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर यानी बायर के पास आ गया. देन आफ्टर क्या हुआ? मनी पेमेंट, मैंने इसका पेमेंट किया, वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, बायर टू सेलर.
while money payment for these goods and services move in the opposite direction, that is from buyer to the seller. I hope principle of सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड डेफिनेशन आप लोगों की क्लियर होगी. अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. बहुत अच्छे से आप समझो इसको. पहले इसका प्रिंसिपल था, पहले डेफिनेशन थी. डेफिनेशन में क्या गिवन है कि हम लोग क्या करते हैं इसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कि इनकम का फ्लो होता है गुड्स और सर्विसेज का, किधर से, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर से. अगर गुड्स की बात करते हैं, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किस सेक्टर से किस पे जाती है, फार्म सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर पे, इन एन इकोनॉमी इन ए सर्कल फॉर्म. और इसके दो बेसिक प्रिंसिपल हैं. प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फर्स्ट क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर. कंज्यूमर ने जितना भी अमाउंट स्पेंड किया है बिकम द इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर. इट विल बी become income of the producer. और second is the most important, goods and services flow in one direction. goods and services किस डायरेक्शन में हुई, वन डायरेक्शन में. किससे किस पे पहुंची, goods and services farm sector to household sector, while money payment for these goods and services move in the opposite direction. मनी का पेमेंट तो उल्टा ही होगा ना. हम लोगों ने मार्केट से क्या किया, जाके प्रोड्यूसर से परचेज किया, और प्रोड्यूसर से परचेज करना वन डायरेक्शन में, गुड्स आई कंज्यूमर के पास, देन आफ्टर हमने क्या किया, उसको पेमेंट किया. पेमेंट किधर गया, पेमेंट गया आपका कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर. आई होप क्लियर होगा. नेक्स्ट है, देयर आर टू फ्लो, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो. इसी में नेक्स्ट कंसेप्ट है, रेगुलर कंटिन्यू चलेगा, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो. इसमें दो फ्लो होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में. फर्स्ट इज रियल फ्लो एंड अनदर इज रियल फ्लो एंड मनी फ्लो. इनिशियली वी आर टॉकिंग अबाउट रियल फ्लो. रियल फ्लो मीन्स टेंजिबल थिंग्स का यहां पर रियल फ्लो हो रहा है. ये सर्विसेज का भी हो सकता है, इट में भी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, नो प्रॉब्लम. रियल फ्लो मीन्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन across different sector of the economy is known as real flow. The flow of goods and services और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बोथ आप लोगों को इंक्लूड करना है. The flow of goods and services or factor of production across different sector of the economy. It means the flow of goods and services or factor of production. तो goods and services का flow किससे किस पे जाना है, again producer to consumer. And factor of production, what do you mean by factor of production? There are four factor of production: land, labor, capital and entrepreneur. नॉर्मली बेटा आप लोग ये एज्यूम करते हैं, एज्यूम ही रियलिटी होती है. हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ओनर होता है और हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को प्रोवाइड कराता है प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर उसी की हेल्प से प्रोडक्शन प्रोसेस को रनिंग में लाता है. गेटिंग. प्रोड्यूसर क्या करता है, हाउस होल्ड यानी फर्म सेक्टर को कहां से मिलेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अपने आप में तो प्रोडक्शन नहीं कर सकती फर्म में, उसको क्या कर चीज की रिक्वायरमेंट होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, और उन्हीं की हेल्प से वो प्रोडक्शन प्रोसेस को रनिंग में ले आता है. आई होप क्लियर होगा ये. द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें मनी को इंक्लूड नहीं करते, ओनली द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. पैसे की बात नहीं की जा रही इसमें. गुड्स एंड सर्विसेज विच आर सेम वन डायरेक्शन में चलती है, किससे, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ. ऑन द अदर हैंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी. और नेक्स्ट होता है मनी फ्लो. मनी फ्लो क्या हो जाएगा, मनी फ्लो में आएगा द फ्लो of payment of goods and services, payments of goods and सर्विसेज, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का भी पेमेंट, और पेमेंट ऑफ
पेमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सेम अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यानी फ्लो पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसकी तरफ से किसकी साइड जा रहा है, हाउस होल्ड की तरफ से प्रोड्यूसर की तरफ, क्योंकि पेमेंट तो वही करेगा, किस फॉर्म में जाना है, इन द मनी की फॉर्म। और पेमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसकी तरफ से किसकी तरफ जा रहा है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ, बिकॉज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किसने यूज किया, प्रोड्यूसर ने, फार्म सेक्टर ने। और किस फॉर्म में किया उसने, मनी के टर्म में। जिससे लैंड लिया था उसको क्या दे दिया, रेंट इन द फॉर्म ऑफ मनी। जिससे लेबर ली थी, जहां से लेबर हायर किया था, वेजेस एंड सैलरी इन द फॉर्म ऑफ मनी। जिसकी कैपिटल ली थी, इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ मनी। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिला, प्रॉफिट। यानी सभी को क्या मिल गया बेटा, यहाँ पर मनी की फॉर्म में। यानी चाहे तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर पे जा रहा हो पैसा, वो भी मनी की फॉर्म में होगा, किसके रिटर्न में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। चाहे गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट हो रहा हो हाउस होल्ड सेक्टर से कंज्यूमर से प्रोड्यूसर को, वो भी मनी की फॉर्म में ही होगा। तो दीज आर द टू फ्लो। एक रियल फ्लो है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज सेंड होते हैं, और दूसरा होता है आप लोगों का सर्कुलर फ्लो। रियल फ्लो एंड सर्कुलर फ्लो, देयर आर रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, देयर आर टू फ्लो। रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सेंड होते हैं, और दूसरा मनी फ्लो जिसमें इनका पेमेंट जाता है। तो रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, देयर आर टू फ्लो कंसेप्ट। सो स्टूडेंट्स, बेटा वीडियो पॉज करनी पड़ेगी, टॉपिक आपका थोड़ा बड़ा है और टाइम बहुत कम है। जब भी कोई मॉडल पढ़ते हैं हम लोग, तो उसको बेसिक अजम्पशन में करना पड़ता है। आप लोगों ने 11th क्लास में बहुत सारा माइक्रो पढ़ा था, तो सबका अजम्पशन दिया था। सेम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का बेसिक अजम्पशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या अजम्पशन होगी कि सबसे पहले फर्स्ट, देयर आर ओनली टू सेक्टर इन द इकोनॉमी। आई हैव ऑलरेडी सेड इन फोर सेक्टर होते, बट वी विल डिस्कस ओनली हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। आई होप नो प्रॉब्लम। सेकेंड थिंग, हाउस होल्ड सेक्टर आर ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन होगा ओनर, हाउस होल्ड सेक्टर, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर के पास ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। किसी की लैंड होती है, कोई लेबर उन्हीं में से बनता है, कोई अपनी कैपिटल लगाता है, और कोई उन्हीं में से एंटरप्रेन्योर बन जाता है। और उन सबको किसको प्रोवाइड कराता था, एंड सप्लाई फैक्टर ऑफ सर्विस टू द फर्म्स। सब फर्म को दे देते हैं, और बाय द हेल्प ऑफ दिस फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। किसकी हेल्प से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसने किसको प्रोवाइड कराया, हाउस होल्ड सेक्टर ओनर है, फर्म सेक्टर को सप्लाई किया। गेटिंग, आर यू गेटिंग, फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्म ने प्रोड्यूस किया गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल द एंटायर आउटपुट। वो अपना सारा एंटायर किसको सेल कर दिया, हाउस होल्ड को। क्योंकि खरीदेंगे कहां से, खरीदेंगे तो कंज्यूमर ही बेटा। फर्म सेक्टर ने बना दिया, फर्म ने प्रोड्यूस कर दिया, और पूरा एंटायर आउटपुट अपना सेल कर दिया, कुछ भी अपने पास नहीं रखा मार्केट में। हाउस होल्ड रिसीव इनकम, हाउस होल्ड ने रिसीव इनकम कहां से रिसीव की थी, दोबारा यही कहिए, उसने क्या किया, हाउस होल्ड सेक्टर आर ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की किसको सप्लाई की, सप्लाई फैक्टर ऑफ सर्विस टू द फर्म। और फर्म ने बदले में क्या किया होगा इनको, फैक्टर पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, लैंड को रेंट मिला होगा, रेंट को लेबर को वेजेस एंड सैलरी, एंड कैपिटल को इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो उसका क्या क्या, अब इनके पास इनकम आ गया हाउस होल्ड के, वो क्या करेंगे, इस गुड्स एंड सर्विसेज पे उस इनकम को स्पेंड कर देंगे। हाउस होल्ड रिसीव इनकम फॉर देयर फैक्टर सर्विस, दिस इज फैक्टर सर्विस एंड स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑन कंजप्शन। वो भी कुछ सेविंग नहीं रखेंगे अपने पास, सारा अमाउंट कंजप्शन पे सेव कर देंगे, स्पेंड कर देंगे। बिकॉज नेक्स्ट आप लोगों की अजम्पशन है, नो सेविंग इन द इकोनॉमी। अगर हाउस होल्ड सेक्टर ने सेविंग करनी बेटा, तो प्रोड्यूसर का एंटायर आउटपुट सेल नहीं होगा, क्योंकि जितना उन्होंने पैसा दिया था वो सारा सेल नहीं होगा। और सेल नहीं होगा तो क्या करेंगे, वो अपने आउटपुट को रिड्यूस कर देगा, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की नीड उसको कम होगी। तो इस सिचुएशन में हम लोगों ने क्या एज्यूम किया है कि हाउस होल्ड सेक्टर ने भी कोई सेविंग नहीं की है, और प्रोड्यूसर ने अपना प्रोडक्ट नहीं अपने पास रखा, उसने एंटायर आउटपुट सेल कर दिया है। नेक्स्ट वन, देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर। मार्केट में गवर्नमेंट सेक्टर भी नहीं है। हम लोग ऐसी इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है, यानी प्राइवेट इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट ना ही टैक्स इंपोज कर रही है, और ना ही वहां पर सब्सिडी ग्रांट कर रही है, कोई गवर्नमेंट का रोल ही नहीं है।
और लास्ट वन, इट इज क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी, इस कंट्री से ना तो एक्सपोर्ट हो रहा है और ना इस कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है। देयर आर नो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप लोगों को ये एज्यूम करके सब सर्कुलर फ्लो का मॉडल पढ़ना है। क्या एज्यूम करेंगे हम? दीज थिंग्स गेटिंग कि टू सेक्टर है मार्केट में, टू सेक्टर है, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई रिलेशन नहीं है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ओनर कंज्यूमर है, हाउस होल्ड है, और वो अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको प्रोवाइड कराएगा? वो सारे फर्मों को कराएगा। बाय द हेल्प ऑफ दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्में प्रोडक्शन करेंगी और उस प्रोडक्शन से फर्में क्या करेंगी बेटा? उसी प्रोडक्शन की हेल्प से फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगी और एंटायर गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सेल करेंगी। कंज्यूमर उस पे सारा अपना जो इनकम उसने रिसीव की थी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, उस एंटायर इनकम को स्पेंड कर देगा फॉर देयर फैक्टर सर्विस, स्पेंड करेगा कंजप्शन पर। गेटिंग, मार्केट में कोई भी सेविंग नहीं है। तो दीज द बेसिक अजम्पशन रिलेटेड टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आफ्टर द बेसिक assumption of the circular flow of income, now time has come that we can understand the circular flow, which are very very important, जिसका आप वेट कर रहे होगे कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो। इसको पिक्चर की फॉर्म में हम करेंगे। मैं अगेन आपकी वीडियो पोज कर रहा हूं बिकॉज टाइम इज वेरी लेस।